Hi everyone. Good morning, good afternoon, and good evening to one and all watching this lecture. So I am CA Pramod Patipati, and you are watching CA Final Free Financial Reporting classes. So if you already don't know what is this class is about, so for CA Final students, I am here to provide the free classes for CA Final paper number one, that is CA Financial Reporting. So you are going to get free video lectures on the YouTube. So please do subscribe my channel, hit the bell icon so that you can receive the notification whenever I upload the lecture. Then comes you are going to get handwritten notes, handwritten concept notes, which includes each and every concept. Handwritten concept notes. Along with that, you will get MCQ compilation. Along with that, uh, and a question bank as per the ICI pattern. So here, let me show you my question bank. So question bank is prepared in such a way that you can identify each and every question and match it with the ICI module. The bifurcation is very clear in this particular module. You can see this. I have separated the questions into illustrations as per ICAI and test your knowledge as per ICI module, and other additional questions based on past papers, RTP, MTP, past papers, RTP, MTP, so that you can easily bifurcate the questions, whether it is illustration or test your knowledge question, or whether it is RTP, MTP questions as well. And let me show you this MCQ module as well. Here is the MCQ module compilation, wherein you will get each and every question covered by ICAI. These questions are picked from the BOS knowledge portal, the practice questions. So all the questions are covered here. You can practice from this MCQ practice book as well, right? So do subscribe the channel, hit the bell icon so that you can receive the latest notifications of the lecture uploaded. Let's start today's session. So today's session might be the last lecture of India's 38, that is intangible asset. In previous sessions, we have learned what we have studied is that starting from the criteria, that is how to identify an intangible asset, till this closure part, we have completed all the understanding concept in detailed manner along with the disclosures. So do watch that lecture and watch after that watch this lecture. So let's start. एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. सो कल क्या चालू किया था? कल क्या चालू किया था सर? अमोर्टाइजेशन पॉलिसी चालू किया था. अमोर्टाइजेशन पॉलिसी इज नथिंग बट अमोर्टाइजेशन इज पॉलिसी इज नथिंग बट सिस्टमैटिक रिडक्शन ऑफ इंटेंजिबल एसेट. अब सिस्टमैटिक रिडक्शन क्या है सर? कि जैसा हम पीपी में डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, पीपी में डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, सिमिलर वे में हम इंटेंजिबल एसेट के ऊपर क्या चार्ज करते हैं? अमोर्टाइजेशन चालू करते हैं. अब जब अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे, ये दो पार्ट में, बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ. अब बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ क्या है सर? इंटेंजिबल एसेट दो तरीके के लाइफ होता है. वन इज फाइनाइट, वन इज इनडेफिनाइट, राइट? वन इज फाइनाइट एंड वन इज इनडेफिनाइट. फाइनाइट इन द सेंस वी ऑलरेडी नो द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट, राइट? फाइनाइट लाइफ मतलब मुझे पता है उसका लाइफ क्या है, 10 years, 5 years, 10 years, एक लिमिटेड लाइफ है फाइनाइट लाइफ में. तो फाइनाइट लाइफ में इफ इन केस मुझे पता है कि कैश फ्लो क्या है उस पर्टिकुलर इंटेंजिबल से, तो वो इंटेंजिबल की कैश फ्लो के बेसिस में, वो इंटेंजिबल की कैश फ्लो के बेसिस में मैं क्या करूंगा? ये मेरा इंटेंजिबल एसेट को क्या करूंगा? अमोर्टाइज करूंगा. इन केस मुझे कैश फ्लो पता नहीं है, अगर कैश फ्लो पता नहीं है तो मेरा सेकंड प्रेफरेंस क्या रहेगा? SLM, WDV और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड मैं क्या करूंगा? यूज करूंगा. अब ये क्या है SLM, WDV? ये जो है ना 100% जजमेंटल है, डिपेंड्स ऑन द एंटिटी विच मेथड टू चूज. ठीक है. देन सेकंड वाला आता विद द इनडेफिनाइट लाइफ. इनडेफिनाइट लाइफ यानी इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल का कोई भी लाइफ प्रिस्क्राइब नहीं है, कोई भी लाइफ प्रिस्क्राइब नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है लेकिन प्रिस्क्राइब नहीं है इस पर्टिकुलर. तो फिर इसमें अमोर्टाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसका लाइफ लिमिटेड नहीं है. देन कम्स ये जो है ना इंटेंजिबल एसेट का इम्पेयरमेंट एनुअली टेस्ट करेंगे. क्या करेंगे सर? एनुअली इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे फॉर द इंटेंजिबल एसेट विच हैज इनडेफिनाइट लाइफ. ठीक है. इनडेफिनाइट लाइफ. अब आके यूजफुल लाइफ है. यूजफुल लाइफ इन द सेंस, यूजफुल लाइफ में अगर कोई भी चेंज आता है तो वो चेंज इन एस्टिमेट होगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा, चेंज इन एस्टिमेट होगा एज पर इंड AS 8. देन सैल्वेज वैल्यू. सैल्वेज वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल इज ऑलवेज जीरो. जो इंटेंजिबल एसेट का सैल्वेज वैल्यू है जीरो रहेगा. बट इन केस उसका एक्टिव मार्केट है और वो एक्टिव मार्केट में मैं उसको बेच के रियलाइज कर सकता हूँ एक्स अमाउंट, जो भी अमाउंट है, तो फिर तब जाके मैं उसको क्या कर सकता हूँ? कंसिडर कर सकता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ सैवल वैल्यू. देन आता है इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट टेस्ट जब भी इंडिकेशन है तब हम टेस्ट करेंगे. अब इंडिकेशन क्या है?
इंडिकेशन जो है ना इंड एस 36 में पढ़ेंगे, दैट इज इम्पेयरमेंट वाला जो इंड एस है ना, उसमें एक्सटर्नल इंडिकेशन है और इंटरनल इंडिकेशन है, ये दोनों हम वहां पे पढ़ेंगे। देन डी रेकग्नाइज देखा था डिस्पोजल एंड रिटायरमेंट, जो भी अर्ली होगा, और ये जो डिस्पोजल करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। देन कम्स द डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर वाला पार्ट देखा था हमने, क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या सेलेक्ट किया था। देन उसके बाद एंटिटी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा इंटेंजिबल एसेट का एंड अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का। देन उसके बाद कितना पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हमें पीएनएल में, सॉरी रिसर्च एक्सपेंसेस, हाँ सिर्फ रिसर्च ऑफ एक्सपेंसेस, रिसर्च एक्सपेंसेस पीएनएल में ट्रांसफर किया है। देन उसके बाद कौन सा वैल्यू यूज कर रहा है, रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है तो उसका एक्टिव मार्केट अवेलेबल होगा तभी यूज कर सकते हैं, बराबर। बराबर, आ जाओ क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में हम देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, इजी इजी वाला पार्ट। अब जो है ना आगे, आई गेस 3 से 4 क्वेश्चन बचे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन फटाफट फटाफट खत्म कर सकते हैं हम। देन वी आर डन विद दिस इन डेज 38, ये एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, देगा क्या, करा देगा कुछ ना कुछ। देखा सर। ओके, कुछ डाउट है उसमें? चलो नहीं सर, रिवैल्यूएशन। प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे सिमिलर ही था। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9 रीड कर लो फटाफट, विच इज बेस्ड ऑन रिवैल्यूएशन मॉडल। सैटर्न। डन सर। डन। आ जाओ क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, सैटर्न लिमिटेड एक्वायर्ड एन इंटेंजिबल असेट ऑन 31st March 2000 x1। तो सैटर्न लिमिटेड हैज एक्वायर्ड इंटेंजिबल असेट फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख का असेट एक्वायर किया, यहाँ तक सिंपल था। द असेट वाज रीवैल्यूड टू 1,20,000। अच्छा, यहाँ पे अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन में एक कंसेप्ट बताया था, जब भी मुझे रिवैल्यूएशन लेना है, जब भी रिवैल्यूएशन कंसिडर करना है, यहाँ पे इसका एक्टिव मार्केट है क्या नहीं देखना है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट है हम अज्यूम कर लेंगे एक्टिव मार्केट है, तब जाके ये रिवैल्यू हो रहा है। ठीक है। देन आगे क्या बोल रहा है, ऑन 31st March X2, on 31st March X2 and 85,000 on 31st March X3। ओके, क्या है यहाँ पे, 31st March X2 को 1,20,000 को रिवैल्यू किया, एंड उसके बाद X3 में 1 लाख, सॉरी 85,000 पे रिवैल्यू किया, मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। अब बताओ सबसे पहला, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो लिख रहा है कि हाँ 1 लाख था मेरा 2X1 में। अब X2 में जाके कितना हो रहा है वैल्यू मेरा, 1,25,000, सॉरी 1,20,000, 1,20,000। तो बताइए ये जो है ना ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन इसको ट्रांसफर करेंगे हम कहाँ पे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। देन अब मेरा जो बुक्स में वैल्यू है, अब मेरा बुक्स में वैल्यू है 1,20,000। यस नो, मेरा बुक्स में वैल्यू है 1,20,000। अब आगे देखो क्या करेंगे। आगे जो है ना X3 को क्या हो रहा है, X3 को ये जो है ना 85,000 हो रहा है। तो यानी टोटल टोटल कितना ये हो रहा है, 1,20,000 माइनस 85,000। तो 35,000 का मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, कितना, 35,000 का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। इसका सॉल्व करेंगे हम इन डिटेल, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 35,000 जो है ना, 35,000 मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। तो फर्स्टली मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ बैलेंस बचा है क्या। यस सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व में बचा है कितना, 20,000। 20,000 यहाँ पे देखो ना, 20,000, 1 लाख था।
1 लाख का 1,20,000 हो गया, तो 20,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, तो 20,000 एडजस्ट करूंगा, और पीएनएल में कितना एडजस्ट करूंगा, 15,000। पीएनएल में कितना, 15,000। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? कल ही किया था ना ये रिवैल्यूएशन मॉडल वाला। Yes, sir. देन जुपिटर लिमिटेड एक्वायर्ड एन इंटेंजिबल एसेट, वो अलग केस था सैटर्न वाला। अब जुपिटर लिमिटेड वाला, ऑन 31st March X1 फॉर 1 लाख, 1 लाख का लिया था। द असेट वॉज रिवैल्यूड एट 85,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट X2 को 85,000 हो रहा, फर्स्ट डाउनवर्ड रिवैल्यूशन हो रहा है। फर्स्ट डाउनवर्ड रिवैल्यूशन जब हो रहा है तो फिर बताओ डाउनवर्ड रिवैल्यूशन कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में क्या रिवैल्यूशन रिजर्व में? बोलो बोलो। पीएनएल में। वेरी गुड। तो फर्स्ट मैं पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा, फिर उसके बाद X3 को हो रहा है 1,05,000, X3 को क्या हो रहा है, 1,05,000। तो बताओ पहले पीएनएल में था, अभी क्या हो रहा है, और इंक्रीज आ रहा है। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन द सेंसर, फर्स्ट जब हुआ था, इसका डायरेक्ट अपन जर्नल एंट्री सॉल्व कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अज्यूम द ईयर एंड फॉर बोथ द कंपनीज एज ऑन 31st March एंड दैट एवरी बोथ एंड दैट दे बोथ यूज द रिवैल्यूएशन मॉडल, मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं। तो मुझे बोल रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन को कैसा डेल्ट करना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना, क्वेश्चन क्या यूज कर रहा है, वर्ड, हमें यहाँ पे क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज वैसे ऐसा कुछ पूछा नहीं है, इन लोगों ने क्या दिया, हमें एक्सप्लेनेशन दिया। अपन जर्नल एंट्री देख लेते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज इलेस्ट्रेशन नंबर क्या है, 9 ना? Yes, sir. ये गुड क्वेश्चन है फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज दैट सैटर्न लिमिटेड, फर्स्ट केस जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे सैटर्न का। ओके, सैटर्न लिमिटेड का सॉल्व करेंगे। तो एज ऑन 31st March, क्या 31st March, जर्नल एंट्रीज। ओके, फर्स्ट डेट क्या दिया है, यहाँ पे डेट भी लिख के लेते हैं। ये हम 12th में बनाते थे, याद है क्या? डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद LF, फिर करते थे डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, तो डेट क्या है, फर्स्ट डेट आज ऑन 31st March, 31st March X1, 31st March X1 को 1 लाख का वो इंटेंजिबल एसेट परचेस किया था। जब 1 लाख का इंटेंजिबल एसेट परचेस किया था, बताओ उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट आ जाएगा मुझे बिजनेस में, इंटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 1 लाख एंड 1 लाख। यस, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल सर। बीइंग इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड, ये लिख लो। देन कम्स ऑन 31st March X2, 31st March X2, 31st March X2 को क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवैल्यू हो रहा है, रिवैल्यू यानी अपवर्ड रिवैल्यू हो रहा है, एसेट रिवैल्यूड टू रुपीज कितना, 1,20,000। ठीक है, एसेट रिवैल्यू टू 1,20,000। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन में हम दो मेथड देखे थे, वन इज डायरेक्ट मेथड, अदर वन इज इनडायरेक्ट, दैट इज ग्रॉसिंग अप मेथड। तो यहाँ पे हम सिंपली डायरेक्ट मेथड फॉलो कर लेंगे, क्यों, क्वेश्चन साइलेंट है ना,
क्वेश्चन बोलता अगर इनडायरेक्ट फॉलो करना है मुझे तो फिर मैं फॉलो करूंगा, अदरवाइज क्वेश्चन इज साइलेंट तो फिर हम नॉर्मल मेथड ही फॉलो करेंगे। तो डायरेक्टली इंटेंजिबल एसेट में मैं इंक्रीज कर लूँ 20,000 का, यस नो? intangible asset acquire account debit, sorry, intangible account debit to revaluation reserve 20,000 and 20,000। 20,000. सिंपल सर, बिंग वाला जो जो भी लिखना है लिख लो। देन एज ऑन 31st March X3, बताओ एज ऑन 31st March X3 क्या हो रहा है? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 85,000 का, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ₹2 85,000। ओके, जब 85,000 को डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, ऑलरेडी मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना है? 20,000 पड़ा है। तो फर्स्ट मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, जब रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व को टाटा बाय बाय बोल दो। कितना? 20,000 का था, तो 20,000 टाटा बाय बाय। फिर उसके बाद पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना? 15,000 होगा ना? 15,000 होगा, कितना होगा? 1,20,000 में से 85 निकाल दो। हाँ, 15,000 टू इंटेंजिबल, या 35,000। सिंपल, हो गया। हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, Yes, sir. सैटर्न वाला। इसमें कोई डाउट है सैटर्न का? No. नहीं होगा। इसका कर सकते हो क्या? किसका? Jupiter. जुपिटर, हाँ। उसका भी सिंपल है, सेम से सेम टू सेम। क्या करेंगे हम? फर्स्ट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ, और उसका क्रक्स सॉल्व कर लेते हैं। जुपिटर लिमिटेड, उसका एक्विजिशन एंट्री सेम रहेगा, इंटेंजिबल एसेट टू बैंक अकाउंट, एक्विजिशन वाला। देन उसके बाद सेकेंड वाला डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है ना, डेट सेम रहेगा, डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम डेट ही है, X2 X3। यहाँ पे हो रहा है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। ₹2 कितना है? 85,000, ₹85,000। तो ₹85,000 को डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, डायरेक्टली इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, बराबर की नहीं? कितना? 15,000 टू इंटेंजिबल, 15,000। देन उसके बाद X3 को क्या हो रहा है? X3 को फिर से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन ₹2 1,05,000। तो जब 1,05,000 को अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, पहले पीएनएल में एडजस्ट करेंगे ना हम। इंटेंजिबल अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है? 1,05,000 माइनस 85,000, 20,000 हो रहा है ना? टू, सबसे पहले पीएनएल को टाटा बाय बाय बोल दो, रिवर्स हो जाएगा 15,000 का टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, कितना? 5,000। चलो, यहाँ पे सिंपल में क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट लिखा, होप सो समझ में आ जाएगा। यस, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं क्या? देखो, 20,000 रिवैल्यूएशन इंक्रीज 31st को शुड बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व विच शुड बी रिकग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है ना, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम रिकग्नाइज करते हैं नॉर्मली। तो रिवैल्यूएशन डिक्रीज जो है, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे और रिमेन वाला 15,000 उसको पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। देन जुपिटर लिमिटेड का सेम, पहला 15,000 जो है ना, रिवैल्यूएशन डिक्रीज, उसको एक्सपेंस कर देंगे इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन 15,000 आउट ऑफ 15,000, फिर उसके बाद इसका इंक्रीज कितना है? 20,000 इंक्रीज आया ना अपर रिवैल्यूएशन के साथ। 15,000 हम किसको एडजस्ट कर लेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व। और 5,000 जो है ना, ये पीएनएल रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। कोई डाउट है वो क्वेश्चन में? और कौन सा क्वेश्चन है ये? इम्पेयरमेंट वाला है। जस्ट अ मिनट, मुझे देखने दो, और इवैल्यूएशन का कोई क्वेश्चन है क्या?
रिवॉल्यूशन तो नहीं है। रिवॉल्यूशन वाला समझा, इजी था। आ जाओ अमोर्टाइजेशन का बेसिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अमोर्टाइजेशन, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 10 रीड कर लो। सिंपल है ओके। और समझ लो इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमने कैश फ्लो का पढ़ा था ना, कैश फ्लो के बेसिस में हम अमोर्टाइज करेंगे जो इंटेंजिबल है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। डन सर। डन। चलो आ जाओ। क्या बोल रहा है यहाँ पे? X Limited engaged in the business of manufacturing fertilizers entered into a technical collaboration agreement with the foreign company Y Limited. X Limited ने क्या किया? Engage किया business fertilizers में, then technical collaboration with the foreign company Y Limited. As a result, Y Limited would provide the technical know-how enabling X Limited to manufacture fertilizer in more efficient way. अच्छा, तो फिर Y Limited क्या देगा? Technical know-how. Technical know-how is something intangible asset. X Limited paid rupees 10 crore for use of technical know-how for the period of 5 years. Okay, sir. X estimate the production of fertilizer. अच्छा, प्रोडक्शन है यहाँ पे। सॉरी, इससे पहले बोला था ना वो कैश फ्लो वाला, कैश फ्लो वाला नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्शन है। यानी यहाँ पे कौन सा यूज करेगा? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज करेगा। क्या यूज करेगा? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज करेगा। यहाँ पे दिया है कितना मेट्रिक टन जो है ना हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। आगे क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट अचीव्ड इट्स टारगेट प्रोडक्शन। फर्स्ट ईयर में जो है ना, जो एस्टिमेट किया था वो अचीव कर लिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 65,000 मेट्रिक टन ऑफ फर्टिलाइजर्स वाज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। 65,000 का मैन्युफैक्चर हुआ। एंड एक्स लिमिटेड कंसिडर टू रिवाइज द एस्टिमेट। एस्टिमेट रिवाइज कर रहा है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। नेक्स्ट 3 इयर्स का यहाँ पे ऑलरेडी कितना था? 1 लाख, 1 लाख 20, 1 लाख 10 था ना। यहाँ पे रिवाइज कर दिया। रिवाइज फिगर्स कितना है? 85,000, 1,005 एंड 115। ठीक है। मेट्रिक टन फॉर 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। हाउ एक्स विल अमोर्टाइज द टेक्निकल नो? तो यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, और उसको अपना इंटेंजिबल को कैसे अमोर्टाइज करेंगे। ओके, ठीक है। चलो बताओ कितना प्रोडक्शन का एस्टिमेट था पहले उनका? 50,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 20 और 1 लाख 10, 45। बेस्ड ऑन फर्स्ट ईयर का एस्टिमेट हम क्या करेंगे? जो भी ये है क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल है 10 करोड़ का, उसको हम अमोर्टाइज कर देंगे ड्यूरिंग द ईयर। बराबर। बेस्ड ऑन दैट हम ड्यूरिंग द ईयर अमोर्टाइज कर देंगे। कैसे करेंगे सर? 10 करोड़ इनटू फर्स्ट ईयर का 50,000 था ना, 50,000 का मेट्रिक टन डिवाइडेड बाय टोटल, तो आ जाएगा मुझे अमाउंट। ठीक है, आ जाएगा अमाउंट। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर में मैं क्या करूंगा? बेस्ड ऑन फर्दर एस्टिमेट मैं ट्रांसफर कर लूंगा डायरेक्टली। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आ जाओ। सॉरी। आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा? ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन 10, amortization based on units of production method।
ओके, कूल। सोल्यूशन। एक मिनट, क्वेश्चन को देखते रहना। जस्ट अ मिनट, आया मैंने। यस। सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, फर्स्ट थिंग, गिवन डेटा क्या है अपने पास? गिवन डेटा है मेरा, इंटेंजिबल एसेट इज फॉर रुपीज 10 करोड़। कितना है? 10 करोड़, 0000 और 30 ना। इतना ही है, हाँ। इतना ही है। फिर उसके बाद इसका यूजफुल लाइफ दिया है मुझे। इसका यूजफुल लाइफ दिया है, कितना यूजफुल लाइफ बताऊं? 5 इयर्स। और इसका कैश फ्लो एस्टिमेट, अपना क्या बोलते हैं इसका, ये यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस जो है ना, उसका एस्टिमेट दिया। और वो एस्टिमेट कितना आ गया? सुन रहे हो? बोलो। एक बार कंफर्म कर दो ताकि मुझे भी पता चले कि प्रॉपर हो रहा है। फोर Yes, लाख sir. फिफ्टी थाउजेंड मेट्रिक टन्स ओके। 4 लाख 50,000, ये एस्टिमेट है। एस्टिमेट कैसा है सर? जो क्वेश्चन में डेटा दिया था उसके बेसिस पे किया। देखो, ये क्वेश्चन में डेटा दिया था कहाँ पे? ये जो है ना, इसके बेसिस में, ठीक है। अब आ जाओ अमोर्टाइजेशन में। फर्स्ट ईयर में कैसे करूंगा मैं? फर्स्ट ईयर में कैसे करूंगा? मुझे पता है फर्स्ट ईयर में कितना प्रोड्यूस करने वाला हूँ। यस सर, 50,000 मेट्रिक टन्स। और टोटल मेरा एस्टिमेट कितना है? 4,50,000 मेट्रिक टन्स इंटू 10 करोड़। हम्म। तो बताओ कितना आ सकता है? 50,000 डिवाइड बाई 4,50,000 इंटू 1, 2, 3, 4। कितना आया? 1, 1, 1। एक 4 1 हो गया, 3 1 हो गया। फिर वापस से 1, 1, 1 एंड 1, 1। ठीक है। यही आ रहा है क्या कैलसी में? देख लो एक बार। यही आ रहा है क्या? देख लो। फिर सेकेंड ईयर में मेरा एस्टिमेट रिवाइज हो गया। सेकेंड ईयर में एस्टिमेट ऑफ यूनिट्स हैज बीन रिवाइज्ड। अब रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या है? बताओ, रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या है? 65,000, 65,000, 85, 1,01,05 और ट्रिपल डबल 1, 5 का। तो आ जाओ, रिवाइज एस्टिमेट निकलते हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओके। तो कि 65,000 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का प्लस, और क्या क्या था? 85,000 था, राइट। प्लस फिर उसके बाद 1,05,000 था, प्लस 1,15,000। तो बताओ इसका एस्टिमेट कितना होता? 65,000 प्लस 85,000 प्लस 1,05,000 प्लस 1,15,000। तो ये हो जाएगा 3,000, 3,70,000 मेट्रिक टन्स। 3,70,000 मेट्रिक टन्स। अब जो है ना, अमोर्टाइजेशन किसके बेसिस में होगा? इसके बेसिस में होगा, 3,70,000 के बेसिस में। 3,70,000 के बेसिस में कैसे करेंगे सर? तो सेकेंड ईयर का अमोर्टाइजेशन क्या होगा? सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का कितना है? 10 करोड़। माइनस फर्स्ट ईयर का कितना था? 1, 1, 1, 1, 1 और डबल 1। ठीक है, इतना था। ये लेस कर लो।
कितना आएगा लेस करने के बाद? 1 2 3 4, 111, 111, 11, इतना ही आया था ना, 111, 111, 11। Yes. कितना आएगा ये? 9 8 8 8। बाप रे, कितना 8 है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 है इसमें। 1 2 3 6 हो गया, ये 7। बराबर है ना? कैलकुलेशन बराबर जा रहा है। Yes. हम्म। 10 फिर से देख लेता हूँ। 10, 1 0 2 3 4, 4 0 है। 1 2 3 4, 4 0 इन द सेंस डबल डबल जीरो काउंट कर रहा हूँ, 8 0 है मतलब। जब 111, 111 और 11। 1 2, नहीं, 888, 888 और 89, 888, 888, 89, हाँ बराबर। अब आ गए बराबर में। अब बताओ सेकेंड ईयर का मुझे एस्टिमेट पता है क्या? सेकेंड ईयर का एस्टिमेट पता है क्या? क्या हुआ, ऑडियो वीडियो अटक गया? शिट या। No, sir. चल रहा है? हाँ, वीडियो भी आ रहा है? ओके, नो नहीं प्रॉब्लम अभी देन। हाँ, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन शेयर में। स्क्रीन शेयर है ना? हाँ। चलो, ये छोटा सा पार्ट बचा है, इसको सॉल्व कर लेते, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन वैसे भी चालू करना ही है हमें। तो 888 ये वाला जो यस। आया। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मुझे एस्टिमेट पता है 65,000। 65,000, 65,000 डिवाइडेड बाय 3,70,000 मेरा टोटल है। तो बताओ कितना आएगा अमोर्टाइजेशन? इंटू 65,000 डिवाइडेड बाय 3,70,000। अरे ई का आ गया साइन। 65,000 डिवाइडेड बाय 3,70,000 इंटू 8 888 888 89। कितना? 156 15615। ठीक है। ये नंबर्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सिंपल है। ठीक है, थर्ड ईयर का आ जाएगा। थर्ड ईयर का सिमिलर वे में सेम करूंगा मैं। ठीक है, सेम वे में करूंगा। और बताओ, ये जो अमाउंट आएगा 888 888 89 इंटू सेकेंड ईयर का एस्टिमेट पता है क्या मुझे? 85,000 डिवाइडेड बाय 3,70,000। इसका बताओ कितना आ रहा है? 85,000 डिवाइडेड बाय 3,70,000। 204, 204, 204, 204। ठीक है। देन फोर्थ ईयर का डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि सिमिलर वे में करेंगे हम। और उसका एस्टिमेट से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एस्टिमेट से 105,000 3,70,000। कैलकुलेट करो कितना आएगा? 252,252,225। ठीक है। देन फिफ्थ ईयर का भी सेम। सेम यहाँ पे जैसे क्या वैसे ही करेंगे। क्यों सर, यहाँ पे क्यों बार बार हम वो लेस कर रहे हैं 10 करोड़ में से जो 111 है? क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर का एस्टिमेट अलग था, अभी का एस्टिमेट अलग है। तो फिर उसके लिए फर्स्ट ईयर का अमोर्टाइजेशन लेस करने के बाद जो भी आएगा उसके बेसिस में हम फर्दर अमोर्टाइजेशन करेंगे। तो सिमिलर वे में यहाँ पे सेम आएगा। यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है बोलो? 276, 27629। ठीक है। ये फिर से क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में रिवाइज करेंगे हम, क्योंकि अभी अटक गया है। हम न्यू सेशन चालू करते हैं, ठीक है। यस। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन जो है ना, मुझे फर्स्ट जो है ना, मुझे क्या दिया था? एस्टिमेट दिया था 4,50,000 का। उसके बेसिस पे मैंने अमोर्टाइज कर दिया फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का अमोर्टाइज करने के बाद मेरे पास बचता है इतना वैल्यू, मेरा इंटेंजिबल का। फिर उसके बाद एस्टिमेट रिवाइज हो गया। एस्टिमेट रिवाइज हो गया तो फिर मेरा रिवाइज एस्टिमेट क्या था? 3,70,000। और जो भी बचा हुआ इंटेंजिबल है 8 लाख जो है ना, 8 लाख, उसको रिवाइज एस्टिमेट के बेसिस पे मैंने क्या कर दिया? अमोर्टाइज कर दिया सर। और ये कहाँ से आया सर? 65,000, 85, 105, 115, ये जो है ना क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी। तो उसके बेसिस पे मैंने क्या किया? सिर्फ अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस निकाल दिया। अब ये क्या करेंगे? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर एक और कर लो अभी। क्वेश्चन नंबर एक्स लिमिटेड।
illustration 11 exclamator at the final year. hmm okay, LDR क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, प्लस LDR क्वेश्चन है। LDR जो भी क्वेश्चंस बोल रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं कि यही एग्जाम में आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख के सॉल्व करना जब भी रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन रीड कर लो, इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी जल्दी। Okay. Done, sir. डन। ये वही है ना रिवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन। Uh, आ जाओ सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला अपना रीड करने का कार्यक्रम कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड परचेस्ड अ पेटेंट राइट। परचेस्ड अ पेटेंट राइट, परचेज किया है यहाँ पे, परचेज किया है फॉर ₹3 लाख। कितने का परचेज किया सर? 3 lakhs का परचेज किया, विच हैज अ लीगल लाइफ ऑफ 15 years का लीगल लाइफ है। लीगल लाइफ इज डिफरेंट, और जो एंटिटी एस्टिमेट करेगा लाइफ वो डिफरेंट है। However, due to competitive nature of the product, the management estimates a useful life of 5 years only. अब बताओ सर, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो यही क्वेश्चन का जो है ना लीगल लाइफ है 15 years है। ठीक है, लेकिन एंटिटी का जो है ना, एंटिटी का एस्टिमेटेड लाइफ है, एंटिटी का एस्टिमेटेड लाइफ है 5 years का। बताओ मैं कौन सा ये लाइफ ले लूंगा फॉर द पर्पस ऑफ अमोर्टाइजेशन, कौन सा लाइफ लूँ? entities estimate. एंटिटीज Right. एस्टिमेट, राइट। क्यों? क्योंकि एंटिटी को पता है उस पर्टिकुलर एसेट को कितने साल तक यूज करूंगा मैं। ठीक है, उसके बेसिस में हम करेंगे। तो 5 लाख इधर ही निकाल लेते क्या, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। और अमोर्टाइजेशन 3 लाख का ये था, और इसका सैलवेज वैल्यू मेरे हिसाब से कुछ दिख रहा नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 5, मेरे हिसाब से अब तक का जो अमोर्टाइजेशन होना चाहिए, अमू होना चाहिए 60,000 का पर ईयर। आगे देख लेते क्या है। आगे क्या है, स्ट्रीट लाइन अमोर्टाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट टू द बेस्ट मेथड। ओके, स्ट्रीट लाइन मेथड यूज कर रहा है जो भी है कंपनी। एज एट फर्स्ट X1 में परचेस किया था, अब X2 में आ गए, यानी 1 साल का अमोर्टाइजेशन लगा लिया इन्होंने। मैनेजमेंट इज अनसर्टेन दैट द प्रोसेस कैन बी एक्चुअली मेड इकोनॉमिकली feasible and decides to write down the patent to estimated market value of 1,50,000 and decides to amortize over 2 years. Oh my God, क्या हो रहा है यहाँ पे? फर्स्ट ईयर हुआ, फर्स्ट ईयर में 1 लाख 3 लाख का इंटेंजिबल एसेट पेटेंट जो है ना वो परचेस किया था, उसका लाइफ हम एस्टिमेट किए थे 5 years का। सिंपल। देन X2 में आ गया मैं, अब X2 में खड़ा हूँ। X2 में क्या कर रहा है, एंटिटी सोच रहा है कि ये जो प्रोसेस है उसको और इकोनॉमिकली फेजिबल कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंजिबल एसेट को राइट डाउन करना पड़ेगा। राइट डाउन मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। बताओ जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करूंगा मैं तो फिर ये पीएनएल में ट्रांसफर होगा ना, पीएनएल में ट्रांसफर होगा। और आगे क्या बोल रहा है, ये जो है ना यूजफुल लाइफ पहले कितना था, 5 साल, अब कितना हो गया, 2 साल का। 2 साल का। क्या ये चेंज है ना वो चेंजेस इन एस्टिमेट है या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? बताओ क्या है ये, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। Change in accounting estimate. यस, वेरी गुड। एज ए 31 March X3, अब X3 में आ गए हम, X3 में आ गए। हैविंग परफेक्टेड द प्रोडक्शन प्रोसेस, द एसेट इज नाउ अप्राइज्ड एट अ वैल्यू ऑफ 3 लाख। फिर से देखो सर क्या कर रहे हैं, फिर से 1,50,000 का जो असेट था उसको अभी फिर से अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितना कर रहे हैं यहाँ पे, अप टू 3 लाख, मतलब 3 lakhs का अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। Furthermore, the estimated useful now is now believed to 4 years. पहले 2 साल का एस्टिमेट किया था, अभी फिर से चेंज करके 4 years कर रहे हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट। क्यों इतने बार अपवर्ड डाउनवर्ड करना, बच्चों की दिमाग खाना। बराबर, एक ही लगा दो, 5 साल 15 साल जो भी है। शिट मैन। चलो आज सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन को देख लो, और मैं लैपटॉप को चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ तब तक।
वीडियो आ रहा है मेरा प्रॉपर? Yes. चलो सॉल्व करेंगे इसको। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 11, राइट? क्या है? इवैल्यूएशन प्लस अमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन। ठीक है। सबसे फर्स्ट गिवन डेटा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे गिवन डेटा क्यों देखता हूँ? क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं रहता ना स्क्रीन के ऊपर, रेडीली अवेलेबल नहीं होता है ना, तो उसके लिए। तो फर्स्ट थिंग इज दैट 1 अप्रैल 2001 को ₹3 लाख का ये किया था, राइट? ₹3 लाख का क्या क्या था सर? ₹3 लाख का इंटेंजिबल एसेट, ये क्या था? इंटेंजिबल एसेट पेटेंट। पेटेंट परचेस किया था। इसका यूजफुल लाइफ कौन सा? एंटिटी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 5 years। इज 5 years, ओके सर, सिंपल। देन उसके बाद आगे क्या बोला है? बस फर्स्ट ईयर के लिए इतना ही है। तो फर्स्ट ईयर का देख लेते हैं कि हम क्या काउंटिंग करेंगे। वैल्यू एज ऑन 31 मार्च X1। तो एक्स 1 अप्रैल X1 को परचेस किया था हमने, 31st में आ गए। अब 31st में आ गए तो फिर इसमें अमोर्टाइजेशन का आ जाएगा, अमोर्टाइजेशन का। तो ओरिजिनल कॉस्ट बताओ कितना है? 3 लाख का है। लेस कर दूंगा अम्मू। अमोर्टाइजेशन कितना सर? कंफर्म करते रहो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? फिर से अटक गया तो फिर 5 years का। Yes. 3 lakhs डिवाइडेड बाई 5, 60,000 का आ गया मेरा अमोर्टाइजेशन। तो फिर यहाँ पे कैरिंग वैल्यू आ जाएगा। कितना आएगा? 2,40,000। सो 2,40,000 आ गया, राइट? अब आ जाएंगे हम X2 में। कब? 31 मार्च X2 में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है मुझे? 31 मार्च, या सॉरी 1 अप्रैल ले लेंगे हम, बाद में 31 मार्च में चले जाते हैं। सेकंड आ जाएगा 1 अप्रैल X2। यहाँ पे क्या डेटा गिवन है मुझे? X2 का गिवन डेटा क्या है? कि मैनेजमेंट अनसर्टन है और क्या हो रहा है? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो फर्स्ट क्या होगा? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। कितना? 1,50,000। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है कि ऑफ 1,20,000 50। क्वेश्चन में क्या बताया है देख लो एक बार, कितना हो रहा है? estimated and decides to write down the patent to an estimated market value of ₹1,50,000। 1,50,000। तो फिर मेरा जो अब, और यूजफुल लाइफ है 2 years का, ओके। कहा गया? चलो सेकंड। सेकंड इसका यूजफुल लाइफ जो है ना, ये रिवाइज हो गया। रिवाइज्ड कितना? 2 years को, ओके। तो यहाँ पे सब बोलो सर। एज ऑन बुक वैल्यू, एज ऑन 1 अप्रैल कितना था? X2 बुक वैल्यू कितना था? 2,40,000। बुक वैल्यू एज ऑन 2,40,000, लेस कर दूंगा मेरा रिवैल्यूएशन। यानी अभी जो असेट है वो 1,50,000 का है। जो भी डिफरेंस है वो मेरा क्या रहेगा? वो मेरा रहेगा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। रिवैल्यू टू कितना रिवैल्यू किया है यहाँ पे? रिवैल्यूड इंटेंजिबल कितना? ₹1,50,000, राइट? ये लेस कर दो, तो मेरा यहाँ पे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा बताओ कैलकुलेट करके?
रुपीज 2,40,000 माइनस 1,50,000, 90,000 का क्या हो रहा है? 90,000 का मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। ये 90,000 हम क्या करेंगे बताओ? रिवैल्यूएशन रिजर्व या पीएनएल? व्हाट वी विल डू, बताओ। हेलो। आवाज नहीं आ रहा है भूमि, अटक रहा है क्या मेरा वीडियो? शायद मेरे स्थिति हो सकता है। वीडियो में आवाज क्या क्या? क्लियर वॉइस नहीं आवाज है। भी हाँ, मेरा आवाज नहीं आ रहा है? अब ठीक है। हाँ, आ रहा है। एक मिनट रुको, एक मिनट, गिव मी अ मिनट। पूछ ये रहा था कि जो बुक वैल्यू है वो 2,40,000 का है एज ऑन 31 अप्रैल 2002। पता है मुझे 2,40,000 कहाँ से आया सर? यहाँ से आया। ये वाला जो है ना, यहाँ से आया। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये जो है ना डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, क्या कितना डाउनवर्ड टू 1,50,000, मतलब इंटेंजिबल असेट को 1,50,000 तक ले गया। जो डिफरेंस है ये 90,000 का, ये 90,000 क्या हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे या इसको हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? क्या करेंगे बताओ? ये नहीं। पीएनएल सिंपल। तो यहाँ पे डाउनवर्ड revaluation will be transferred to PNL। इसका जर्नल भी लिख लेते हैं ताकि ना, फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। क्या करेंगे सर? डायरेक्टली हम कर देंगे पीएनएल अकाउंट 90,000 टू पेटेंट। सिंपल, यस सिंपल। देन हम आगे डेप्रीशिएशन, अब रिवाइज डेप्रीशिएशन भी निकालना पड़ेगा ना। रिवाइज्ड डेप्रीशिएशन, सॉरी अमोर्टाइजेशन, डेप्रीशिएशन नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? अमोर्टाइजेशन होगा। रिवाइज्ड अमोर्टाइजेशन बेस्ड ऑन 2 years estimate of life। ठीक है। तो यहाँ पे 2 years एस्टिमेट ऑफ लाइफ के बेसिस में हम रिवाइज डिप्रिशिएशन निकालेंगे। तो बताओ, रिवाइज्ड डिप्रिशिएशन है अमोर्टाइजेशन। फिर से कुछ तो दिक्कत आ रहा है इसको। 1,50,000 मेरा असेट है अभी, और 2 years का मेरा यूजफुल लाइफ है। तो बताओ मेरा अमोर्टाइजेशन 1 साल के लिए 75,000 हो जाएगा। ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट, यस सर। और मैं बोलूँ नेट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च क्या ही है? X2 है क्या X3 है? X2 है ना, X3 है सॉरी। हाँ जा भाई, क्या हो रहा है इसको? ठीक है, एक मिनट। तो कितना, 1 साल का अमोर्टाइजेशन लेस कर देंगे, तो 1,50,000 में से 75,000 लेस हो जाएगा, तो फिर मेरा ये जो है ना रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आएगा वो? X3। तो कितना होगा? 1,50,000 माइनस 75,000 का आ जाएगा मेरा 75,000। यानी मेरा बुक्स में एज ऑन 31 मार्च 2000 X3 को 75,000 वैल्यू बचा है। देन आ गए हम X3 में। 1 अप्रैल X3 में यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। कितना हो रहा है अपवर्ड रिवैल्यूएशन? अपवर्ड रिवैल्यूएशन 3 lakhs को। यस नो? यस सर। और रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ कितना दिया है यहाँ पे? फोर। वेरी गुड, 4 years।
अब मेरा बुक्स में एज ऑन फर्स्ट अप्रैल, ये थर्ड हुआ ना, तो एज ऑन 1 अप्रैल X3 मेरा कितना बचा है इंटेंजिबल? 75,000, बराबर। मेरा 75,000 का बचा था, लेकिन अब रिवैल्यूड पेटेंट एज ऑन 1 अप्रैल X3 कितना है? 3 लाख का। यस। तो डिफरेंस कितना हुआ? अपवर्ड रिवैल्यूएशन। 3 लाख में से 75,000 लेस कर लो, कितना आता है बताओ? 2,25,000। यस टू। ओके, 2,25,000। अब पहले से मैंने पीएनएल में कितना ट्रांसफर कर रखा है? 90,000 का ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखा है, यहाँ पे देख लो। तो 95,000, सॉरी 90,000 है ना, 90,000 ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखा है। तो मैं पहले पीएनएल में एडजस्ट करूंगा, बाकी का जो बचा है उसको रिवैल्यूएशन में डाल दूंगा। तो आ जाओ, यहाँ पे जर्नल एंट्री कर लेते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले पीएनएल में एडजस्ट होगा, राइट? पेटेंट यस। अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो पेटेंट मेरा टोटल इंक्रीज है 2,25,000 का। ठीक है, इसमें से 90,000 मैं पीएनएल को एडजस्ट करूंगा, पीएनएल को टाटा बाय बाय। फिर उसके बाद बचा हुआ रिवैल्यूएशन में करूंगा। बचा कितना बचा है? 90,000। बचा है 1,35,000। कितना बचा है? 1,35,000। ओके, समझा यहाँ पे क्या बोला? समझा है? देन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च X4 को क्या करेंगे हम? रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे सर, बराबर ना। मेरा रिवैल्यू हो गया। अब मेरा एसेट जो है ना वो 3 लाख का है, और रिवाइज यूजफुल लाइफ है 4 साल का। तो बताओ कितना डेप्रिसिएशन आएगा? ₹3 लाख मेरा यहाँ पे रिवाइज्ड रिवैल्यूड अमाउंट है, राइट। और 4 इयर्स मेरा रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ है। तो 3 lakhs डिवाइडेड बाई 4, 75,000 का अमोर्टाइजेशन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा क्या? आई एम रियली सॉरी, बार बार डेप्रिसिएशन क्यों आ रहा है? अमोर्टाइजेशन होगा यहाँ पे, अमोर्टाइजेशन होगा। अमो रिवाइज्ड अमोर्टाइजेशन 75,000। ठीक है, तो मेरा कैरिंग अमाउंट, या फिर समझ लो कितना आएगा बताओ? ₹3 lakhs माइनस 75,000। 3 lakhs माइनस 75,000, या आ जाएगा 2,25,000। क्या आएगा? 2,25,000। यस नो? बताओ। और फर्दर जो है ना, वैल्यू 15 में 5 X5 X6 और X7, ये तीनों साल में सेम टू सेम चार्ज होएगा 75,000। और मेरा जो है ना इंटेंजिबल एसेट जीरो हो जाएगा, बराबर। समझा क्या बोला? यस सर। देखो फिर से बताता हूँ, क्योंकि ग्लिचेस हुए थे। क्या था कि मुझे दिया था 3 लाख का, मैंने एसेट परचेस किया था। एसेट परचेस किया था 5 इयर्स का, उसका एस्टिमेटेड लाइफ है। अब यहाँ पे लीगल लाइफ नहीं लेंगे, कंपनी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लेंगे। उसके बेसिस में मैंने फर्स्ट ईयर का अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस चार्ज कर दिया। कितना सर? 60,000। तो फिर मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया 2,40,000। ठीक है। देन X2 में क्या करा? X2 में मुझे दिया है कि जो है ना मेरा इंटेंजिबल एसेट जो पेटेंट है उसको डाउनवर्ड रिवैल्यू क्या है? अप टू 1,50,000। ठीक है, मेरा अभी एसेट को 1,50,000 कर दिया मैंने। जो डिफरेंस है 90,000 का, उसको क्या करूंगा मैं? पेनल में एडजस्ट कर लूंगा, बराबर। अब मेरा जो है ना यू इंटेंजिबल एसेट 1,50,000 का हो गया, और इसका रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ है 2 इयर्स। तो उसका अमोर्टाइजेशन आ जाएगा 75,000 का, बराबर। X3 में क्या हो रहा है सर? जो 75,000 का बुक वैल्यू था उसको अपवर्ड रिवैल्यू किया है अप टू 3 लाख।
राइट। तो ऑलरेडी मैंने पीएनएल में 90,000 ट्रांसफर किया था, तो फिर अभी जो भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा, जो भी जितना भी अमाउंट था, यहाँ पे कितना था, 2,25,000 था। अब यहाँ पे 2,25,000 में 90,000 मैं पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा, यानी पीएनएल से एडजस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर पीएनएल से एडजस्ट किया है ऑलरेडी, जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन था। देन जो भी बचा है उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा, और उसके बेसिस में मैंने रिवाइज्ड अमाउंट हटाया। कितना आ गया रिवाइज्ड अमोर्टाइजेशन? 75,000। एंड फर्दर फर्दर जो है ना, X5 X6 X7, कितना और 3 साल बचते हैं ना ये होने के बाद, तो ये तीनों साल के लिए सेम करेंगे और इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू नील हो जाएगा। ठीक है? इज देयर एनी डाउट? बताओ। ये एडिशनल क्वेश्चंस। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अपना एडिशनल क्वेश्चन बन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर लो एक बार। हेलो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कल के लेक्चर में मिलते हैं। Yes.